Hello students, welcome to our YouTube channel that is Chinsa Classes, and today in our English series we'll do the topic of adjectives and adverbs। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਨੰਬਰ 6 ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੀਰੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਫੋਕਸਡ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟੌਪਿਕਸ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸੈਪਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਫਰਦਰ and do the definition and classification of adjectives and adverbs. So before moving further, I wanted to tell you that कि ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ 5 ਲੈਕਚਰਸ ਹੋਏ हैं अगर ਤੁਹਾਨੂੰ यूजफुल लगे हैं तो प्लीज़ सबसक्राइब आवर यूट्यूब चैनल ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਟੀਨਸਾ ਕਲਾਸਿਸ ਤੇ ਇਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੈ ਪਟਵਾਰੀ ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਿਨੋਨੀਮਸ ਹੈਗੀਆਂ ਐਂਟੋਨੀਮਸ ਹੈ ਈਡੀਅਮਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜੂਗੀ because ਜਿਹੜੇ इंग्लिश है इस एग्जाम के दैट कंसिस्ट्स ऑफ अराउंड 20 मार्क्स। 20 मार्क्स अपने लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप 20 मार्क्स फुल स्कोर भी कर सकते हैं। सो दिस सीरीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर पटवारी एग्जामिनेशन। सो लेट्स मूव फर्दर एंड डू द कंसेप्ट ऑफ एडजेक्टिव्स एंड एडवर्ब्स। अब फर्स्ट करांगे एडजेक्टिव एडवर्ब। एडजेक्टिव की हुंदा है ਜਿਹੜਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾउन ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾउन ਨੂੰ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੂਮਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਵੂਮਨ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ महिला है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬਿਊਟੀਫੁਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਹੈ ਉਸਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 9 और 10 टाइप्स ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ, ਕੁਆਂਟੀਟੇਟਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ बिफोर मूविंग फर्दर आप देखेंगे एडजेक्टिव का यूज की है। एडजेक्टिव आप दस देखी है। तो व्हाट इज द यूज ऑफ एडजेक्टिव। ठीक है, एडजेक्टिव आपू कलर बारे दसते हैं, जो सेंटेंस के कलर बारे डिफाइन किया हो। ठीक है, आपू किसी के सोच बारे कि वह सही सोच रहा है, गलत सोच रहा है, ਜਾਂ खुश है, ਜਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ मतलब कि मजाकिया है। ठीक है, किसी के ओपीनियन बारे दसते हैं, किसी के कलर बारे दसते हैं। ठीक है, दूजा साइज बारे भी दसते हैं। ठीक है, तो साइज क्या बिग है कि स्मॉल है कि शॉर्ट है। ठीक है, कि वेट ये साइज जो उसका है कि शॉर्ट है, स्मॉल है। ठीक है, तो उसकी एज बारे दसते हैं कि वो ओल्ड है, यंग है। ठीक है, उसकी शेप बारे दसते हैं, वैदर उसकी शेप जी है ट्रायंगुलर है, सर्कल है। ठीक है, उसकी शेप रिक्टेंगुलर है। इस इन्होंने शेप्स बारे भी आपू एडजेक्टिव्स जो यूज होंगे। ओरीजन है वो जर्मन है, चाइनीज़ है, कैनेडियन है, नेपालीज़ है, वो बारे भी आपू ये दसते हैं। ठीक है, तो मटीरियल जो यूज होया है जिमें ग्लास, मैटल, गोल्ड। ठीक है, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, इन्होंने बारे भी आपू जो एडजेक्टिव्स है आप डिस्क्राइब उन्होंने चीज़ों को डिस्क्राइब करने लिए आप यूज कर सकते हैं। डिस्टेंस, लॉन्ग, शॉर्ट, नियर, फार। ठीक है, टैंपरेचर रूम का जिमें लगा लो कोल्ड है, वार्म है। ठीक है, उस लिए भी यूज होंगे हैं। टाइम जो आप दसना सेंटेंस के ही अराइव्ड लेट, ही अराइव्ड अर्ली, तो उस भी आप एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं। तो इन्होंने एडजेक्टिव का यूज ये है। ठीक है, तो देखो एडजेक्टिव किस वास्ते यूज होंगे हैं, कलर वास्ते यूज होंगे हैं, ओपीनियन वास्ते यूज होंगे हैं, साइज लिए यूज होंगे हैं, एज वास्ते यूज होंगे हैं, शेप वास्ते होंगे हैं। ठीक है, ओरीजन, मटीरियल, डिस्टेंस, टैंपरेचर एज वेल एज टाइम।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ 10 ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਆ ਕਿ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਦੀ ਇਹ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਫਸਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਆਲੀਟੇਟਿਵ ਐਡਜੈਕਟਿਵ, ਉਹ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸਣ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੱਸਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ पर्सन की क्वालिटी दसन या कंडीशन दसन, किसी की मैरिट दसन। मैरिट पता तुहानूं की होंदे मैरिट्स और डीमैरिट्स। मैरिट और डीमैरिट्स मतलब किसी दियां आपां अच्छियां गल्लां दसन, ठीक है, तो किसी दियां बुरियां गल्लां दसन, उन्होंने आपां की कहने हैं क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स कहने हैं। तो इहदा आपां एग्जाम्पल लवांगे। सो टेक एन एग्जाम्पल जिवें आपां पहला लिता सीगा, एग्जाम्पल होएगा शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, ये इज द एग्जाम्पल है। तो ये क्वालिटी ये दसी गई है वो कही है ब्यूटीफुल, ठीक है। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव केड़ा यूज होया है ब्यूटीफुल। तो ये अपनी होगी फर्स्ट क्लासीफिकेशन। तो अपन की दसदी है क्वालिटी बारे दसदी है, बंदे दे मैरिट या डीमैरिट बारे दसदी है। तो एग्जाम्पल आप कर लिया शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। हुण आपां चलदे हां सैकेंड क्लासीफिकेशन के उत्ते, वो है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी मतलब ये तुसीं रिलेट कर लो कि किसी चीज़ की क्वांटिटी बारे दसदा आ, जिवें सम लिखा होया है, सम कुछ चीज़, सम शुगर बारे, लिटल टी, है ना, कुछ इस तरीके दे नाल, ठीक है। तो आपां नूं कुछ क्वांटिटी बारे दसदा है। हुण जे आपां इसदी एग्जाम्पल लईए, ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हैं मुकेश, जिवें अंबानी बारे गल कर लीए, ठीक है, मुकेश हैज़ इनफ मनी। जिहड़ा मुकेश है उहदे कोल बहुत मनी है, ठीक है। इनफ मतलब किसी क्वांटिटी बारे गल की गई है, मनी दसिया गया है कि मनी की क्वांटिटी बारे गल की गई है। मुकेश हैज़ इनफ मनी, तो जो एडजेक्टिव यूज किया गया है वो है इनफ। सो दिस इज अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सो लेट्स मूव ऑन फर्दर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट एडजेक्टिव, दैट इज द न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल मतलब हो गया नंबर्स। नंबर्स आप किवें यूज कर बारे देख सकते हैं, जिवें फर्स्ट हो गया, सैकेंड हो गया, वन हो गया, ठीक है, इस तरीके नाल आपां इहनूं डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, न्यूमरल एडजेक्टिव नूं। हुण आपां जे दी एग्जाम्पल लईए, आपां एग्जाम्पल ले सकते हैं इसदी ही हैज़ देयर आर 40 गर्ल्स इन दी क्लास। हुण एक क्लास दे विच 40 गर्ल्स हैं, तो आप इत्थे किसी न्यूमेरिकल डेटा नूं स्पैसीफाई कर लिया, न्यूमेरिकल डेटा नूं कुछ लिखता है तो मतलब 40 आ गया है। इत्थे आपां जिहड़ा एडजेक्टिव यूज किया है वो है न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। आप तीन चीज़ा कर लिया कवर की, क्वालिटी किसी चीज़ की क्वालिटी, कंडीशन वो अच्छिया चीज़ा या बुरिया चीज़ा, दैट इज़ मैरिट्स या डीमैरिट्स बारे दसदा, क्वांटिटी कि क्वांटिटी किस तरीके कितनी क्वांटिटी है, इनफ है, लिटल है, थोड़ी है, सम है, ठीक है, कुछ इस तरीके की क्वांटिटी बारे दसूगा। न्यूमरल है, न्यूमरल मतलब फर्स्ट 40 है, 20, ही इज़ ओवर इट्स 20, ही इज़ ओवर 40s मतलब अपनी एज बारे दस रहे कि आ बंदा 40 सालों तो उपर है, ठीक है। जो आप एग्जाम्पल लिए ही इज़ ओवर 40, तो 40 भी होती न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हुण जो प्रॉपर एडजेक्टिव है ना, ठीक है, ये कितने यूज होंदा है जिथे आप बेसिकली प्रॉपर नाउन्स नूं यूज करना होवे, ठीक है, उत्थे आप की यूज करते हैं प्रॉपर एडजेक्टिव यूज करते हैं, ठीक है। तो इत्थे प्रॉपर नाउन्स उन्होंने दसिया सीगा, जिहड़े प्रॉपर नाउन्स वो होंदे हैं जिहड़े किसी दे नाम नूं डिफाइन करन जां किसी चीज़ नूं या किसी थिंग नूं प्रॉपर चीज़ दा प्रॉपर नाम वगैरह होवे जां, है ना। तो जिवें एग्जाम्पल ले लो अमेरिका, ठीक है, टेक एग्जाम्पल ऑफ कैनेडा, ठीक है।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਹੋਣਗੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਟ ਲੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਆਫ ਦਿਸ ਥਿੰਗ दैट इन प्रॉपर एडजेक्टिव्स और इन प्रॉपर नाउन्स और इन प्रॉपर प्रोनाउंस ਜਿਹੜਾ ਵੀ फस्ट ਲੈਟਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ एग्जाम्पल देखते हैं कि जेड़े प्रॉपर नाउन्स के आप एग्जाम्पल लीए कि आई हैव, आई राइट इट हेयर थोड़ा जा, आई हैव 4 कैनेडियन फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे 4 ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਰੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਿਊਮਰਲ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ दैट इज 4, ਤੇ 2 ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ 4 ਦੀ ਸੇਕ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਕਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ठीक है। सिंपल विच याद रखो कि प्रॉपर एडजेक्टिव कैनेडियन यूज़ होया आ, ठीक है। तो जे होर तुसीं देखना चाहते हो तो जो न्यूमरल एडजेक्टिव यूज़ होया आ वो है 4। 4 नूं आपां एवें नहीं सेंटेंस दे विच 4 नहीं पाना है, 4 आपां हमेशा इनू इंग्लिश दे विच राइट करांगे 4, ठीक है। तो इहदे नाल तुहाडे प्रॉपर एडजेक्टिव भी कंप्लीट हो गया आ। पोसैसिव एडजेक्टिव आपां थोड़ी जे आपां जदों डे टू डे लैंगुएज के विच गल करते हैं आप कहने नहीं वो ना बहुत पोसैसिव है मेरे वास्ते। मतलब पोसैसिव क्यों होंदा, क्योंकि वो अपना समझते हैं, है ना। इस तरीके नाल तुसीं पोसैसिव एडजेक्टिव नूं ना थोड़ा रिलेट कर सकते हो, ठीक है। पोसैसिव एडजेक्टिव का मतलब की होया कि कुछ रिलेशनशिप डिफाइन करता होवे, ठीक है। रिलेशनशिप नूं डिफाइन करता होवे जां कुछ ओनरशिप नूं डिफाइन करता होवे, ठीक है। डिफाइंस रिलेशनशिप और ओनरशिप, ठीक है। इन चीज़ों को डिफाइन करता हो तो आप कह दें कि रिलेशनशिप जो ओनरशिप जो डिफाइन करता हो वर्ड उन्होंने आप कह दें एडजेक्टिव। जिमें आप एग्जाम्पल दी है माय ते योर की, ठीक है, ठीक है। वो कह आप कह दें ही इज़ माइन, आप कह दें आप पोजैसिव पाने वास्ते, ठीक है। इस तरीके आपू सॉरी इस तरीके आपू याद करांगे पोजैसिव एडजेक्टिव नूं, ठीक है। इसलिए आप एग्जाम्पल लवांगे possessive adjective दी, these are his books। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ बुक्स ने ये उसनों बिलोंग करदियां ने, मतलब ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ वाली बुक्स ने, ठीक है। these are his books। इत्थे किसी रिलेशनशिप की गल की जा रही है, उस बंदे दी बुक्स दी उस मतलब उस बंदे दी रिलेशनशिप किस नाल है, बुक्स के नाल है, ठीक है। तो रिलेशनशिप की गल की जा रही है, ठीक है। तो जां ओनरशिप की हो गया, ओनरशिप जो आप समझना हो कि किहड़ी ओनरशिप की गल की जा रही है इत्थे कि जिहड़ा वो बंदा आ वो उस बुक्स नूं ओन करता है, मतलब कि वो बुक्स उस मुंडे दियां ने जां उस बंदे दियां ने, ठीक है। इत्थे किहड़ा एडजेक्टिव यूज़ होया अपना हिज यूज़ होया आ, तो दीज आर हिज बुक्स। So possessive adjectives are used to define the relationship or the ownership. Example is these are his books. So ਆਪਾਂ ਹੁਣ नेक्स्ट वाले adjective ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਹੈਗਾ distributive adjective। distributive adjective ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਆ, distributive adjective ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਟੌਫੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ 'ਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਟੌਫੀਜ਼ ਦਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੀਚਰ ਰਿਸੈਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਪਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 2 ਟੌਫੀਜ਼ ਪਰ ਚਾਈਲਡ, ਹੈ ਨਾ, 2 ਟੌਫੀਜ਼ ਪਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी इस तरीके नाल ही सेम चीज़ होंदी है कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दे विच की यूज़ होंदा आ कि जिहड़े अपने जिथे वर्ड्स यूज़ हो जान, ईच हो जे यूज़, ठीक है, एवरी यूज़ हो जे जिथे वर्ड, ठीक है, या जिथे हो जे इधर यूज़ हो जे, मतलब ए जे वर्ड जिथे यूज़ हो, ठीक है। आप फॉर एग्जाम्पल लवांगे हर एक बच्चे नूं, ईच मतलब डिस्ट्रीब्यूट आप कह दें डिस्ट्रीब्यूट कॉपीज और टॉफीज टू ईच स्टूडेंट्स, ठीक है। मतलब इस तरीके से रिलेट कर सकते हो, ठीक है।
ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਈਚ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਿਵ ਆਬਜੈਕਟਿਵ। ठीक है, तो आप थोड़ी जी एग्जाम्पल होर लेने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दी। आप लिख देने इत्थे ईच गर्ल हैज़ अ बुक, हर एक लड़की कोले एक बुक है। तो ईच गर्ल हैज़ अ बुक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन की गल की गई है। तो ईच गर्ल हैज़ अ बुक, जो तुसीं इहनूं याद रखना है तो तुसीं बस ये अपने दिमाग के रिटेन करना है। इतने अपने वर्ड यूज हो गए ईच, एवरी, इधर, नीदर, ठीक है, उत्थे की हो जाएंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। ठीक है, हुण अपने हो गए नेक्स्ट वाला टॉपिक है अपना क्लासिफिकेशन है, दैट इज डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोस्ट्रेट मतलब किसी बारे दसना, किसी को डेमोस्ट्रेट करना। ठीक है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना, उन्होंने आप कहना डेमोस्ट्रेट ऑब्जेक्टिव। ठीक है, किसी चीज़ को पॉइंट करना, आप किसी को पॉइंट कर सकते हैं, जां तो आप किसी परसन को पॉइंट कर सकते हैं, या तो आप किसी थिंग को पॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, जिमें किमें पॉइंट कर देंगे, एग्जाम्पल जिमें दीज आर हिज हैट्स, यह उस दी हैट्स ने। आप पॉइंट किया कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ हैट्स ने ना उस ਦੀਆਂ ने। ठीक है, दीज आर हिज नूं छड्ड के तुसीं लिखो राम्स हैट, ਜਿਹੜੀਆਂ हैट ने राम दियां ने। ठीक है, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਡਜੈਕਟਿਵ यूज होया आ ये होया दीज, मतलब पॉइंट कर रहे किसी चीज़ वाल। ठीक है, तो इन्हों आप कह दें डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। हुण आपां चलदे हां नैक्सट वाले अपने क्लासिफिकेशन ते। ठीक है, फटाफट कवर करिए। इन्हों आप कहने इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव। इंटैरोगेशन तुहानूं पता ही होंदा ना कि हुंदी इंटैरोगेशन, जिस बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो बस उस तरीके नाल याद करना। जिवें इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव के विच आ जाऊगा व्हाट, विच, हुज। ठीक है, इस तरीके नाल आप इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव्स याद करांगे। व्हाट आर इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव्स एंड विल सी इट द एग्जांपल ऑफ दिस। जिवें दा एग्जांपल है विच पेन इज योर्स, ये एग्जाम्पल है इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव की। हुण आपां हुण क्वेश्चन पूछना आ, इंटैरोगेशन करनी है, मतलब अपना क्वेश्चन पूछना है, आपां पूछना है कि आ चीज़ कित्थे है, या तुहाडा नाम की है। ठीक है, इस तरीके दे नाल उसनूं आपां कुछ क्वेश्चनिंग करनी है। ठीक है, इत्थे अपना इंटैरोगेटिव ऑब्जेक्टिव दे विच जिहड़ा अपना ऑब्जेक्टिव यूज होया आ, किहड़ा यूज होया इत्थे विच। ठीक है, सो दिस इज आर इंटैरोगेटिव ऑब्जेक्टिव। ठीक है, हुण आपां चलदे हां अपने नैक्सट एडजेक्टिव ते, दैट इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। तो व्हाट इज एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव मीन्स, एम्फेसाइज करना मतलब किसी चीज़ से थोड़ा जिहा ना बहुत ही स्ट्रैस पा देना। स्ट्रैस मतलब कि एक चीज़ ना बड़े ही ध्यान नाल दसनी, या बड़े ही ना उस चीज़ जिहड़ी चीज़ तुहानूं दसनी है ना, मेन चीज़ दसनी हुंदी है, आपां उत्ते बहुत ही ज़्यादा आपां स्ट्रैस पा के दसना, बहुत ही जोर पा के दसना, उन्होंने आपां कह देंगे एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव। ठीक है, ये आपां एग्जाम्पल ना करांगे, तुहानूं एग्जाम्पल ना समझ आएगा। तो मैंने एग्जाम्पल लब के रखी है तुहाडे वास्ते स्पेशली। तो इस एग्जाम्पल है ही सॉ his beloved on the road with his own eyes। मतलब आप चलो ही कटिए, ही ना लिखो, लिखो राम सॉ हिज बिलव्ड ऑन दी रोड विद हिज ओन आई। जो राम है उसने अपने बिलव्ड मतलब जिन्होंने प्यार करता है, अपने सगे संबंधी नूं उसने सड़क पर देखा विद हिज ओन आई, उन्हें अपने अखां नाल देखा। आप कहने मैं उन्होंने चोरी करते अपने अखां नाल फड़िया आ। ठीक है, पर कहने अखां नाल जो स्ट्रैस बहुत पाया इस चीज़ से, उन्होंने आप कहते इंफेसाइज बहुत किया आप इस चीज़ में, इस वर्ड में। ठीक है, इतने इंफेसाइजिंग एडजेक्टिव किहड़ा यूज हो गया ओन आइज। ठीक है, तो आप हम चलते हैं अपने नैक्सट वाले ते लास्ट वाले एडजेक्टिव ते। इत्थे यह होंदा एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। तुहानूं पता ना एक्सक्लामेशन साइन की होंदा है, इन्हूं आपां एक्सक्लामेशन साइन कहने। तो यह एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव जो आपां कुछ कहने व्हाट आ की हो गया, व्हाट सीरियसली, मतलब इस तरीके दे नाल आपां जो कोई सेंटेंस आपां बोलना होवे
ਜਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਐਡਜੈਕਟਿਵਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਐਕਸਕਲਾਮੇਟਰੀ ਐਡਜੈਕਟਿਵ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਡਜੈਕਟਿਵ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। फिर आप ये टॉपिक अपना एडजेक्टिव खत्म हो जाएगा एंड विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एडवर्ब्स। ठीक है, और एग्जांपल हैगी है व्हाट अ बिग बिल्डिंग। ਹੁਣ ਆਪਾਂ बुर्ज खलीफा जावांगे। ठीक है, वैसे तो आपां नूं पता है कि इट इज़ द टॉलेस्ट बिल्डिंग है, राइट है ना। तो आप देखेंगे व्हाट ए बिग बिल्डिंग इट इज़। ठीक है, उत्थे आप अचंभित हो जाएंगे, जिवें कह देंगे ना हिंदी अचंभित हो जाएंगे, हैरान हो जाएंगे, आश्चर्यजनक हो जाएंगे। उत्थे कहांगे वाह कितनी वड्डी बिल्डिंग है। ठीक है, कई बार आप कहते व्हाट ए ब्यूटीफुल पार्क। ठीक है, कितना सोहना एक गार्डन है, पार्क है, उत्थे भी आप एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। इत्थे की आ जाएगा वर्ड। ठीक है, हुण इत्थे वर्ड वॉट इंटैरोगेटिव ते एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव की डिफरेंस होया। इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव उत्थे यूज़ होएगा जिथे आप कोई क्वेश्चन पूछने हैं। ठीक है, एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव उत्थे यूज़ होएगा जिथे आप कोई आश्चर्यजनक गल करनी है, जां ठीक है कोई बहुत खुशी वाली, जिवें एकदम हो नहीं जाते एकदम हैरान हो जाने चीज़ से, है ना। हैरानी खुशी की भी हो सकती है और सैडनेस की भी हो सकती है। ठीक है, तो इस तरीके के आप टोटल अपने 10 जी अपनी क्लासीफिकेशन सीगियां आप कवर कर लिया एडजेक्टिव की। तो अपना एडजेक्टिव इतने खत्म हो गया। हम आप चलते हैं अपने नैक्सट टॉपिक पर, वो है एडवर्ब्स। आई होप तुहानू एडजेक्टिव समझ आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नैक्सट टॉपिक दैट इज एडवर्ब्स। हुण आपां पहला देखिया सीगा जिहड़ा एडजेक्टिव है इट इज़ यूज टू क्वालीफाई अ नाउन और अ प्रनाउन। हुण जिहड़ा एडवर्ब्स है इट इज़ यूज टू क्वालीफाई अ वर्ब। ठीक है, हुण देखो आपां किवें याद करांगे इस चीज़ नूं, क्योंकि एडवर्ब के नाल की लग्या होया वर्ब लग्या होया, तो आप लिखांगे एक किस नूं क्वालीफाई करेगा, वर्ब नूं क्वालीफाई करेगा। ठीक है, बस छोटी जी डेफिनेशन याद करनी है, कुछ ये नहीं करना दिस इज़ कॉल्ड एडवर्ब्स, कुछ नहीं इदा कुछ नहीं याद करना। आप सिंपली वे दे नाल जाना है, तो हर एक चीज़ याद करनी है। ठीक है, हम आप क्लासीफिकेशन करांगे। ये क्लासीफिकेशन भी इट इज़ हैज़ अराउंड 7 to 8 पार्ट्स। ਉਹਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸਨੂੰ ਨਾ ਕਨਸੈਪਚੁਅਲੀ ਤੇ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲੀ ਆਪਣਾ ਬੇਸ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਐਡਵਰਬ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਆਪਣੀ ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਸਲਾਈਡ ਤੇ। ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਐਡਵਰਬਸ ਕਿੰਨੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋਗੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਅਰਾਊਂਡ ਆਪਣੇ 4 5 6 7 8 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, we have 8 types of adverbs, mainly 8 types of adverbs। ठीक है, तो इतने adverbs of time अब देखेंगे फर्स्ट अपनी adverbs of time। ठीक है, what does it says? adverbs of time की जी क्लासीफिकेशन है, ठीक है, वो की होंगी है तो एग्जाम्पल की है। ठीक है, adverbs of time का मतलब की है जी adverbs time नू एक्सप्रैस करती है, which expresses time are called as adverbs of time। ठीक है, हुण जिवें टुडे है, येस्टरडे है, अ डे बिफोर है, ठीक है, टमोरो है। ठीक है, ये टाइम नू एक्सप्रैस करदियां ने, इहनूं आपां की कहांगे एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो एग्जाम्पल लवांगे, टुडे इज़ माई एग्जाम, टुडे इज़ माई एग्जाम। ठीक है, तो इत्थे जिहड़ा टुडे है वो की यूज़ होया अपना एडवर्ब यूज़ होया है। ठीक है, किस तरीके का एडवर्ब यूज़ होया है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि टाइम नू एक्सप्रैस कर रहा है। ठीक है, सो एडवर्ब्स ऑफ टाइम वाला फर्स्ट अपनी क्लासीफिकेशन होगी। हम आप चलते हैं एडवर्ब्स ऑफ प्लेसिस से। जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेसिस है ना, वो किसी प्लेस में डिफाइन करेगा, जरूरी नहीं कि प्लेस का नाम ही होवे। आप कह दें हेयर देयर, ठीक है, मूव हेयर मूव देयर। ठीक है, तो आप किवें लिखांगे एग्जाम्पल किवें समझांगे, ही बहुत ज़्यादा हो गया है, कुछ और लिख दें, सीता वॉज सिटिंग देयर। सीता ना उत्थे बैठी सी। हुण आपां नूं नहीं पता कि वो कित्थे बैठे सी, आप सिर्फ पोजीशन दसी कि वो उत्थे बैठे सी, आप इशारा किया है उस प्लेस वाल।
सीता वॉज सिटिंग देयर, इत्थे वर्ब की यूज हुई है देयर, ठीक है, एडवर्ब, आई एम सॉरी, इत्थे एडवर्ब की यूज हुई है देयर, ते किहड़ी टाइप दी है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेसिस। जी एडवर्ब्स होंदियां ने वर्ब नूं क्वालीफाई करने लई यूज होंदियां ने। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਡਵਰਬ ਕੀਤੀ ਐਡਵਰਬਸ ਆਫ ਟਾਈਮ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਕਿੰਡ ਐਡਵਰਬ ਕੀਤੀ ਐਡਵਰਬਸ ਆਫ ਪਲੇਸਿਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿੱਤੀ ਸੀਤਾ ਵਾਸ ਸਿਟਿੰਗ देयर, ਤੇ ਐਡਵਰਬ ਆਫ ਪਲੇਸ ਕਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਈ देयर। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਥਰਡ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, दैट इज एडवर्ब्स ऑफ नंबर, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨੇਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ टाइम टाइम बारे दसूगी, प्लेस बारे दसूगी, ठीक है, नंबर है वो नंबर बारे दसूगी। ठीक है, इस तरीके नंबर की हो सकता है, ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, ठीक है, 3 भी हो सकता है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल लेने आप कि आप लिखने हर्ष was not seen even once। ਜਿਹੜਾ ਹਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਰਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੰਸ ਕੀ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਬਸ ਆਫ ਨੰਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵੰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਵੰਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਥਰਾਈਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਆ, ਟਵਾਈਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਦੇ 3 ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। आप चलते क्वांटिटी, आप क्वांटिटी आप पहले पता लग गया अपन क्वांटिटी अपनी कितनी होएगी किस चीज़ की। ठीक है, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी तुहानू पता ही है ना कि थोड़ी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, और आप लिखिया सीगा जिवें मुकेश हैज़ इनफ मनी। ठीक है, वो भी एक एडवर्ब है इनफ जिहड़ी हैगी है। तो आप इहदे विच ये भी लिख सकते हैं कि दे are partially right। ठीक है, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਅੱਧੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਮਤਲਬ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਅੱਧੇ ਸਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਰਾਈਟ। ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਅੱਧੀ ਹੈ 0.75 ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਆਪਾਂ ਮੋਸਟਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਫ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, तो दे आर पार्शली राइट। ठीक है, तो क्वांटिटी की गल की गई है इत्थे, तो इट इज़ एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। तो एडवर्ब ऑफ मैनर, मैनर का मतलब होया कि जिहड़ी चीज़ जिहड़ा वर्ड है किस वे नाल यूज़ किया गया है, किस मैनर नाल यूज़ किया गया है। जिहड़ी चीज़ हो रही है वो स्लो हो रहा है, वो फास्ट हो रहा है। ठीक है, ठीक है, तो इत्थे आपां एग्जाम्पल लवांगे सोल्जर्स fought bravely। हुण इत्थे मैनर की होगी ब्रेवली। वाई ब्रेवली क्यों होया, मैनर क्यों, क्योंकि जो अपन दसिया गया कि इस चीज़ की विशेषता दसी गई है। ठीक है, पंजाबी अगर अपन कन्वर्ट करिए तो चीज़ की विशेषता दसी गई है कि सोल्जर है ना वो बहुत ही बहादुरी नाल उन्होंने लड़िया। ठीक है, तो मैनर स्लोली भी हो सकता है, फास्टली भी हो सकता है। ठीक है, ब्रेवली बहुत एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, चलते हैं एडवर्ब्स ऑफ रीजन दे विच। ठीक है, ठीक है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੀਜ਼ਨ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਡਵਰਬ ਦੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਰਡਸ ਹੈਂਸ, देयरफॉर, ਦਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਰੀਜ਼ਨ ਦੱਸਣ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੈਰੀਫਾਈ ਹੋਏਗਾ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖਿਆ आई दस लेफ्ट दी गार्डन। ठीक है, मैं गार्डन नूं आई थर्स जो ये मतलब लास्ट के जो आप एसेस वगैरह लिखते हैं या कोई सेंटेंसिस फॉर्म करते हैं दस वगैरह आप लास्ट यूज़ करते हैं क्योंकि आप जो कंक्लूजन देना हो है ना, तो दस जो रीजन देना हो तो आई दस लेफ्ट द गार्डन। इतने एडवर्ब ऑफ रीजन जो यूज़ होया है दस। ठीक है, या आई देयरफॉर लेफ्ट द गार्डन। ठीक है, तो ये जोड़ा एडवर्ब्स ऑफ रीजन कि यूज़ होया है देयरफॉर और दस रीजन दसिया है कि हाँ मैं गार्डन नूं लैफ्ट करता। प्रॉपर आप लिख सकते हैं बिकॉज भी लिख सकते हैं क्यों किया है, ये अपने मतलब कि सेंटेंस फॉर्म हो सकता है। ठीक है, जो रीजन दसना हो प्रॉपरली, बट अगर इन्ना भी
ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਕੁਐਸਚਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਡਵਰਬ ਲੱਭੋ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟਾਈਪ ਹੀ ਦੱਸੋ। ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ does ਹੈ, therefore ਹੈ, ਇਹ ਐਡਵਰਬ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਆਫ ਟਾਈਪ ਐਡਵਰਬਸ ਆਫ ਰੀਜ਼ਨ। ਸੋ ਲੈਟਸ मूव on to the second last type and that is the adverbs of negation। ਤਾਂ negation मतलब पता ही अपन से नॉट लग जाए, certainly मतलब नॉट श्योर, certainly ਦਾ मतलब ਹੁੰਦਾ कि ਆਪਾਂ श्योर नहीं है किस चीज़ वास्ते, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ एग्जाम्पल बड़ी सिंपल है, जिमें I don't know her, मैं उसनू जानती नहीं हाँ, तो इत्थे नॉट जिहड़ा है वो की है negation मतलब नेगेटिव कह दें जो आप नॉट यूजली कह दें इंग्लिश के दैट एडवर्ब्स ऑफ नेगेशन। इट इज़ वेरी सिंपल, ये तो सबनों रिटेन हो ही गया होएगा, ठीक है। इंटैरोगेटिव आप पहला यूज़ करते हैं ना क्वेश्चन जो आप आस्क करते हैं, ठीक है, वट आर इंटैरोगेटिव वर्ब्स एंड ऑल, ठीक है। इंटैरोगेटिव एडजेक्टिव्स द सिमिलरली इंटैरोगेटिव एडवर्ब्स भी वही हो गए जिथे वैन वाओ वेंस यूज़ किया होवे उत्थे आप इंटैरोगेटिव एडवर्ब्स अपने होंदे यूज़ होंदे हैं, ठीक है। तो आप एग्जाम्पल लवांगे where do you live, ठीक है। इत्थे इंटैरोगेटिव एडवर्ब किहड़ा यूज होया है where, ठीक है। so this is an interrogative adverb used in this sentence। तो ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ सारी क्लासिफिकेशंस है वो कंप्लीट कर लिया ने, ठीक है। एडवर्ब्स की होंदे हैं, एडजेक्टिव्स की होंदे हैं, उन्होंने क्लासिफिकेशन, एडजेक्टिव्स का यूज़ की है, एडवर्ब्स का यूज़ की, एडवर्ब्स की क्लासिफिकेशन की है, एडवर्ब्स की डेफिनेशन की होंदी है। सो फ्रॉम योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू दिस कंप्लीट्स योर एडजेक्टिव एंड एडवर्ब्स टॉपिक। आप जो नेक्स्ट टॉपिक लेके आवांगे, ठीक है, उस भी आप कुछ इंपॉर्टेंट ऐसी चीज़ां कवर करांगे, थोनों फंडामेंटल्स जिहड़े भी हैगे एक्सप्लेन करांगे। एंड इफ यू गाइज हैव एनी डाउट रिगार्डिंग ऑल द रिगार्डिंग एनी ऑफ द लेक्चर सीरीज, तो प्लीज डू कॉन्टैक्ट अस or do write down your views in the comment section। we are always there to help you, ठीक है। कोई भी तुम एक्सरसाइज डाउट आ रहा है, ठीक है, तुम जाओ, तुहानू सारे कंसैप्ट समझा दिते हैं। ट्राई टू डू दी एक्सरसाइजेस, तो आप एक दो क्लासेस होर भी लावांगे जिथे आप जिन्ने भी टॉपिक्स कवर कर ले ना उन्होंने सब दी एक्सरसाइज भी करांगे, ठीक है, ताकि तुहानू पता लग जाए कि तुहानू हुण किन्ना आंदा आ ते किन्ना तुसी अच्छा पेपर च कर सकते हो, ठीक है। तो अपना जो लेक्चर सीगा अपना एडजेक्टिव्स ते एडवर्ब्स ते जे तुहानू वधिया लग्गिया होवे, डू लाइक दिस वीडियो and do share it among your friends and subscribe to our YouTube channel। and ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। and thank you and have a nice day।